ओके अच्छा ताले गत क्लास पिला में इडी यूक्लिड डोमेन विषय डिस्कशन करूथिले मन पका पले डेफिनेशन में आउथ रिमाइंड करूची डेल इज ए फंक्शन फ्रॉम डी टू जेड डी है हमर इंटीग्रल डोमेन जहां पे डिफाइन हेतिबो जेड होची सेट ऑफ इंटीजर्स if it satisfy the following condition del of a must be greater than equal to 0 for any non-zero element a not equal to 0 belongs to D. Second कथा del of a into b greater than equal to del of a. तापर थर्ड कथा ला for every a belongs to D b not equal to 0 belongs to D b equal to a equal to b q plus r then r equal to 0 or del of r is less than del of b. सो ये तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई कले आम डेल को गोटे यूक्लिड डोमेन बोली कहिबा। आम गत क्लास रे प्रमाण करथिले जेड गोटे यूक्लिड डोमेन प्रमाण करथिले फील्ड मध्ये गोटे यूक्लिड डोमेन मध्ये प्रमाण करथिले। आज वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिबा so that the Gaussian ring of integers you know that the definition zi a plus ib where ab belongs to z is an ed यह एक यूक्लिड डोमेन हबो बोली आमे आपको प्रमाण पिले करिबा। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक परीक्षा पय तो बहुत इंपोर्टेंस रहउची यह एक यूक्लिड डोमेन बोली आमे प्रमाण करिबा। सो प्रथम कथा में देखैबा तो प्रथम कथा छि इजीटी नॉन एम्प्टी एस आई मे से दैट जे 1 plus i0 1 plus i0 obviously it is the element of zi then I can say that 1 is a element of z of I ताले if I take a plus ib belongs to z of ib यदि एलिमेंट पिले नबा ताले व्हाट हैपन ताले हमें कोन कहिबा हां हमें फंक्शन पे डिफाइन कर दबा आगे लेट del be a function z of I to z defined by del of a plus ib is equal to a square plus b square मु फंक्शन को डिफाइन कली। आरंभ करिबा फर्स्ट टॉपिक ले जे a plus ib be a element of zi be a non-zero element of z of I. Now what about del of ib is equal to a square plus b square. It must be greater than or equal to 0 because why I can say a plus ib is a non-zero element of zi को non-zero माने कौन बुझिलो either उभय non-zero किंबा a non-zero b 0 किंबा b non-zero a 0 जहाँ भी नौच नियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन भारिबो स्क्वायर मींस पॉजिटिव भारिबो किंबा जदि 0 0 नै थियो 0 ही भारिबो सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 0 सो फर्स्ट कंडीशन इज सैटिस्फाइड। Let us come to the second condition. Let a plus ib c plus id belongs to element of zi where all a b c d are elements of z. Then what is del of a plus ib? Simply a square plus b square. Del of c plus id is c square plus d square. Now what is a plus ib into c plus id? After multiplication you have a c minus bd plus I into ad plus bc. Therefore del of a plus ib into c plus id will be equal to, you can see here, f of del of a plus ib a square plus b square, real part square imaginary part square. तो ये कौन हबो you have a c minus bd रो square plus ad plus bc रो square तुम यार स्क्वायर पिले फिटेइबो you can get a square plus b square into c square plus d square जब गुणा गुणी करिवो यही तो ता पिले मिलिबो आराम से फिटेइबो। देखो इति भारिबो a square c square b square d square minus 2abcd इति plus 2abcd भारिबो से दुई कीरा टर्म कैंसिलेशन हबो कॉमन हला परे a रहिबो। This value is greater than equal to a square plus b square होना नहीं को दियो को गुणफल ये हला a square plus b square obviously ये टर्म टा आटू बड़ तो तुम्हें कौन ऑब्जर्व कलो ना मैं ऑब्जर्व कर जदि x पड़ आपको जदि y पड़ तले कौन बुझिलो ना del of x into y greater than equal to del of x এটা ठीक ना नहीं को जदि x पड़िलो a plus ib जदि x को तुम्हें a plus ib पड़िलो del x हबो a square plus
b square. So del of xy greater than or equal to del of x. So first two condition of ED is now satisfied. Let us come to the third and the most important property of your ED. कौन पे देखा प्रथम देखा कौन कली लेट आम आरंभ कले a प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी मन पका आम कौन करते a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अर्थात a को b रे हरिबा भागफल q भागशेष r हवा दरकार तो हरण प्रोसीजर अच्छी मुझे a प्लस आई बी रे c प्लस आई डी हरिली where कौन मु कहूची c प्लस आई डी not equal to 0 belongs to z of I and all a b c d are elements of z ये समस्ते होचती elements of z पिले कौन करिबा आर कंजुगेट को ऊपर तले गुणी दवा कंजुगेट माने c minus id so you have a plus ib into c minus id divided by तले हबो c square plus d square ऊपर गुणाउणी करिबा गुणाउणी कले तुमे पाइबो ac plus bd plus I into bc minus ad divided by c square plus d square को डिवीजन करिबा ac plus bd by c square plus d square plus I of bc minus ad divided by c square plus d square. So I may say this is a element of qi bracket. Why I say like this? I may say like this. ये कहि c square plus d square is positive. ठीक अछि ऊपर देख पले जा भी ले गोटा कोन इंटीजर ना नहीं को इंटीजर बाय इंटीजर एंड तळ होची नॉट इक्वल 0 obviously is a rational number. So ये भी rational number but containing I. So I write it belongs to qi. So I say suppose this is r plus is. So what I take r here sc plus bd divided by c square plus d square and s equal to bc minus ad divided by c square plus d square r nelly and s nelly. सरी गला and both are all are elements of your q. ये समस्ते होचने हमर elements of q. Now I choose two integer m and n. मु एमिति मजार दीटा integer नउची भली के मार्क थाने सुनियो ठीके. I choose two integers m and n in such a manner that r minus m रा mod is less than equal to half and s minus n रा mod मध्य less than equal to half. मु एमिति मजारे mn दीटा इंटीजर नउची जंती r minus m रा mod less than equal to half होथिबो s minus n mod less than equal to half होथिबो किमिति कोन मु करी त गुटे आउटे व्याख्या करू सुनिबो if r belongs to q जदी r टा गोटे रेशनल नंबर हबो देन I write r equal to square bracket r plus theta where 0 less than equal to theta less than equal to half hele m equal to r square bracket and if half less than theta less than 1 m equal to square bracket r plus 1 कौन कहले मन दे सुनिबा जो m and n किमिति कोन फाइंड आउट करिवो मु ताबे डिस्कशन करि टिके फली प्ले सुनिबो जदि r एक रेशनल नंबर एटा को रेशनल नंबर पड़िबो एटा को थीटा पड़ुची मु जदि r एक रेशनल नंबर हेइथिबो r को मु एया के लिखिबी स्क्वायर ब्रैकेट r प्लस थीटा एमति लिखिबी थीटा रा कोन थीटा होची गोटे मूल्य i द्वारा 0 रु हाफ भीतर हेइथबो बा हाफ रु a भीतर हेइथबो. Let us try. Suppose I say r equal to 5/2. मुनेली यह एक रेशनल नंबर नो डाउट इज ए रेशनल नंबर. I may write r equal to 5/2 as 2 plus half. 2 plus half. So what you see? देखो 2 को लिखली कोन पूर्ण संख्या स्क्वायर ब्रैकेट माने कोन गोटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर का तयार करछि 2. तो व्हाट इज थीटा हियर थीटा हला हाफ थीटा हला हाफ तो को कैटेगरी रे पळैला ए कैटेगरी रे पळैला बेले ए में कोन कहिछि ना ए में हबो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ r माने इंटीजर टा की से 2 ए में 2. सपोज आई टेक मनकर मु मनकर अनदर इंटीजर लिखिली r इक्वल 5/3 5/3 की लिखि परिबा 1 plus 2/3 तो मतलब को व्हाट इज थीटा हियर थीटा हला 2/3 2/3 जे ग्रेटर देन हाफ ना नहीं 318
10.6 समथिंग पड़ो ये 10.5 हाफ रो अधिका जदि अधिका व्हाट इज एम लिखा स्क्वायर ब्रैकेट आर प्लस 1 मीन्स केते व्हाट इज स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर ब्रैकेट किस है स्क्वायर ब्रैकेट आर माने किस 1 है 1 plus 1 equal to 2 ताले बुझी पाइलो हाउ कैन यू फाइंड m and n किमिति पाइबो दैट इज द प्रोसेस मु डिस्कशन करेली देखो तुम दीटा कथा करेली 5/2 जो थीटा र मूल्य हाफ गोटे 5/3 नेली थीटा मूल्य 2/3 दीटा केस डिस्कशन करे लक्ष्य कर r minus m रो मोड लेस देन इक्वल हाफ ठीक चेक कर ठीक ना नहीं r केते हला को मूल को आसो r केते हला 5/2 इटी m केते हला m हला केते 2 what is r minus m रा mod को 5/2 minus 2 रा mod 1/2 less than equal half ठीक ना नहीं को सेकंड को आसीबा सेकंड s minus n को से r minus मन को से r s दिला समान होला अछंती हो r minus मन को m रा mod सेकंड कथा हम विश्लेषण करते केतो r केते हला ना 5/3 minus 2 केते हला को minus 1/2 रा mod इज इक्वल टू हाफ जे कि लेस देन इक्वल हाफ है कि नहीं तो मु एमिति मजारे m एंड n को चॉइस करिछि देन r minus m रा मोड लेस देन इक्वल टू हाफ s minus n मोड लेस देन इक्वल टू हाफ लेट अल्फा इज इक्वल टू r minus m and बीटा इज इक्वल टू s minus m दैट मींस m इक्वल टू सॉरी हां तले ए पुडु को m टा घिनी आसी r इज इक्वल टू अल्फा प्लस m and it is केते हबो r है it is equal to I write beta plus n now let us come to the मूल आर्टिकल की पळे आसो तला मैं कोड थिले तमे कोड थिले a plus ib by c plus id आमे लिखितिले r plus is लिखितिले बर्तमान r मूल्य पाइले अल्फा प्लस m I write अल्फा प्लस m प्लस i into s मूल्य पाइले बीटा प्लस n अल्फा प्लस एम ये बीटा प्लस एन को सजई देले आई राइट अल्फा प्लस आई बीटा प्लस एम प्लस आई एन अल्फा प्लस आई बीटा एम प्लस आई एन सी प्लस आई डी की आधे मल्टीप्लाई कर दूची तले कौन हम ए प्लस आई बी विल इक्वल टू सी प्लस आई डी इंटू अल्फा प्लस आई बीटा सी प्लस आई डी इंटू एम प्लस आई एन so I write this as a plus ib equal to c plus id into q plus r where I write q is equal to m plus in and r equal to c plus id into alpha plus I beta कथा टिके हबा मु कोन कली c plus id की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देली कला परे मु ए जो एक्सप्रेशन हेची देखो a इक्वल हम लक्ष्य कर फॉर्मूला कोन a इक्वल b q प्लस है तो आज भीतर किए से b अछि कि r अछि मु कहली c प्लस id इनटू q प्लस r q ले जाई छी m प्लस in एटा को नै गली एटा फिर q हैला तो एटा हमटा कोन हे गला r ही हे गला तर वर्तमान मु तुम देखिबार अछि जे ए r विषय वर्तमान डिस्कशन करिवार अछि कोन ना इफ r इक्वल टू 0 आई हैव नथिंग टू शो मो को छाचा हे गला तो तार हम डिस्कशन किछ करिवार ना then what to show I want to show del of r must be del of b हमरा ए जो कंडीशन हम देखियार पड़िबो b माने कैसे कहलो हम देखिया पड़ो del of c plus id हम देखिबार अछि now what is del of r means del of c plus id into alpha plus I beta बिला को मल्टीप्लाई करले हबो del of alpha c minus beta d plus I of beta c plus alpha d आपको गुणिले ए पाइबा del ऑपरेशन कोन को रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर alpha c minus beta d रो स्क्वायर प्लस beta c प्लस alpha d रो स्क्वायर एटा को फिटेइले तुमे पाइबो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एटा पाइबो इलेटे कथा हबा मु तुमको नेइथिली आर नै लक्ष्य करो आर माइनस एम को नेइथिली अल्फा एस माइनस एन को नेइथिली बीटा ता माने मु कोन पाइची तले कोन पाइली ना ए हम पाइली अल्फा रा मॉड लेस देन इक्वल टू हाफ बीटा रा मॉड लेस देन इक्वल हाफ आउ तो डिस्कशन करो मु अल्फा नै छी r माइनस m को तुम अल्फा रा मॉड लेस देन इक्वल हाफ हैला बीटा नै छी s माइनस m तो बीटा रा मॉड लेस देन इक्वल हाफ हैला ता माने अल्फा स्क्वायर लेस देन इक्वल 1/4
बीटा स्क्वायर लेस देन इक्वल 1/4 तेणु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 2/4 बा 1/2 instead of alpha square plus beta square I write less than equal to half of c square plus d square এই যে মূল্যটা হাফ অফ সি স্কোয়ার প্লস ডি স্কোয়ার ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার প্লস ডি স্কোয়ার नहीं कुह কিন্তু এইটা নুহে কি ডেল অফ সি প্লস আইডি তেমন তুমি কোন পাইল না ডেল অফ আর লেস দেন ইকুয়াল টু ডেল অফ সি প্লস আইডি সো the third condition of ED is now satisfied therefore ZI the Gaussian integer is an Euclidean domain very important topic आपको भली कि डिस्कशन के लिए करिवो मोर नै सुनिबो नहले मते नेक्स्ट क्लास रे पचारिबो ताहले आम आलोचना कले पिले जे जेड ऑफ आई गॉसियन इंटीजर इज एन यूक्लिड डोमेन से डिस्कशन कले नेक्स्ट आउट थ्योरम पिले डिस्कशन करिबा एवरी ईडी इज ए पीआईडी अर्थात एवरी यूक्लिड डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आरंभ करिबा प्रमाण मने कर डी बी एन इंटीग्रल डोमेन आम डी टा गोटे इंटीग्रल डोमेन नेले and let बड़ आई बी एन आइडियल ऑफ डी मने कर बड़ आई टा आइडियल ऑफ डी हैला if I say I equal to 0 set out ideal which is a element of D which is कौन I of ideal जे कि of D item is 0 set obviously I is nothing but is a principal ideal generated by 0 तो आधर हमर किछि nothing to show किछि देखेबार नाही let A be a non-zero element of कौन प्ले D such that माने कौन ता तो A टा ना कौन non-zero element of D नेली such that I take del of A is minimum मु तुमको देखौची del नेली कौन del of A होची minimum तले व्हाट टू सो मु तुमको कौन देखेबी तले आउ त क्लियर करची let I be ideal of Z ideal of D having a non-zero element A कौन कहली बुझेला इति आई रे प्रथमे कौन नेली आई रे गोटे जीरो एलिमेंट नेली जे कि आइडियल कौन ऑटोमेटिकली पीआईडी हे गला बता मुन कौन नेली इंटीग्रल डोमेन आई रे गोटे non-zero एलिमेंट A नेली कौन कहि देली एमिति मजर नेली जे डेल इज मिनिमम मु कौन तुम देखिया को चाहूची ना मु देखिया छु आई होची पीआईडी मींस आई वांट टू शो आई इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए एटा तुमको देखिया को चाहूची आरंभ कली कथा जेहेतु आई गोटे इंटीग्रल आई होची आइडियल ऑफ डी आई में से दैट द जनरेटर ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ आई खास कथा के ती बुझी जाओ आई जेहेतु आइडियल ऑफ डी ए होची एलिमेंट ऑफ कहार तमरा आई रो तुम जनरेटर ऑफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ आई आई प्ले आइडियल माने मने पका सब ग्रुप और अंडर एडिशन हितो बोथ ए आर एंड आर ए बोथ कंडीशन सैटिस्फाई करूथिबो तुम जनरेटर ऑफ ए सबसेट ऑफ आई मु तुमको कहली आई इक्वल टू ए रो जनरेटर देखैबा को चाहूची तले व्हाट टू शो ए सबसेट बी मु कहि देली तले व्हाट टू शो आई वांट टू शो आई इज सबसेट ऑफ ए रो जनरेटर ठीक अछि लेट P belongs to I मु नेली B belongs to कोठी I रे नेली then by division algorithm A टा देखो लिस्ट एलिमेंट मु नेछि डेल टा को मिनिमम कहिछि B टा को A रे होउछि मने कर भागफल Q भाग शेष R तो I can say that B is equal to AQ plus R therefore R is equal to B minus AQ So you have two options of R. R of the option either R equal to 0 or del of R is less than del of A. Del of R is less than del of A. If you take del of R is less than del of A, but del R कौन less than or equal to 0. 0 del R माने कौन को एटा कौन हम सॉरी del of R तो 0 हिथिबो del of R सॉरी हम लिखिबा बेटर पे लिखे del of R is less than del of A. del R कौन कहूची मु del टू सान बट del कौन कहिछि I am is the minimum value मु होची सब सान पॉजिटिव होची मु del R less than del A ऑप्शन हेई परिबो की
कारण डेलार जो लेस देन डेलार तो मिनिममटा कि हम डेलार हो तेणु ए प्रकार कंडीशन इज रूल्ड आउट दीटा कंडीशन ये केस जब रूल्ड आउट है आर कौन पाइल 0 पाइल जदि आर 0 पाइल बी केते कह ना बी है ए क्यू माने इट इज मल्टीपुल ऑफ ए मीन्स बी बिलोंग्स टू ए रो जनरेटर नहीं कह तुम नहीं कौटी बी को नहीं आई रे पाइल कौन जनरेटर है कौन आई इज ए सबसेट ऑफ ए जनरेटर ए इज ए सबसेट ऑफ बी B is a subset of A on a combining A equal to B, I equal to A रो generator means तुम्हें गोटे ED नहीं थिला जियार दाग जोड़ा आइडियल मु नेली A कौन हैला सेटा PID हैला काहे कि इट इज जनरेटेड बाय A सेट हे गला तेनु एवरी ED इज ए PID प्रत्येक ED गोटे PID हे गला थ्योरम हैला so that every ED इज UFD प्रत्येक ED एक UFD बोली तुम्हें प्रमाण कर देखो केते बढ़िया बढ़िया कथा शॉर्ट फॉर्म आलोचना करथली परीक्षा ए आकार पढिबो ED और इक्वल डोमेन दबो ना यूनिफैक्टर डोमेन दबो ना ए आकार दबो सो दैट एवरी ED इज UFD बस वर्तमान हम कोन कोन करिया आमे कहिले जस्ट वी हैव शोन दैट एवरी ED इज ए PID संगे संगे प्रमाण करली मु जस्ट प्रीवियस क्लास डिस्कशन करथली एवरी PID इज UFD देखो तो उत्तर हैला कि नहीं ED हैला PID एवरी PID हैला UFD देयरफॉर एवरी ED इज UFD प्रमाण हैला तो शॉर्ट क्वेश्चन परीक्षा पढ़ला तो ध्यान दे लिखिबो आ जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन पढ़िला तो एटा कोन कर दबो ED इज PID लिखि दला तापर वी नो दैट PID इज UFD देयरफॉर एवरी ED इज UFD बुझेला कि ना पर नेक्स्ट थ्योरम आसीबा तला लेट D be an ED माने यूक्लिड डोमेन A and B are associates A B दीटा हला associates so that del of A is equal to del of B कोन कहिला प्रथमे कहिला D हला ED D हला इंटीग्रल डोमेन जे की हला ED माने यूक्लिड डोमेन A B होचनी associate but definition of associate means A equal to B into U where U is unity where U is unity प्रमाण करिबा del of A equal to del of B आरंभ कले now del of BU as it is ED I can write it greater than equal to del of B del of B but BU is A so what happen na del of A is greater than equal to del of B equation 1 मारते again A equal to BU U is unity means it has a multiplicative inverse उभय पटे U inverse multiply कर दोछि therefore I have B equal to U inverse A आशा पर तुम बुझी परथुबो B हैला U inverse A now del of U inverse A as it is ED greater than equal to del of A but U inverse A is B therefore del of B greater than equal to del of A equation 2 on a combining equation 1 and 2 you have a del of A is equal to del of B the result follows just टिके देखली मैनिपुलेट कर देला अंक हे गला आ गोटे कर दवा बुझिउछ अनदर थ्योरम पे लेला लेट D be ED D हैला यूक्लिड डोमेन so that U is unity of D if and only if D of U equal to D of 1 where D is mapping पिले मु लिखिला बेले D लिखि देइछि एटा D लिखिया कथा मु सेले D भी मैपिंग तो मु लिखि देइछि परीक्षा लक्ष्य करले मु तो आरंभ क्लास रे इडी रे कहिथिली मु D लिखि पारे बा D भी लिखि पारे तुम बही परीक्षा पढ़ला बेले D आकार देइथे पारे बा D आकार देइथे पारे कंफ्यूज हो नै सेले कि आमी हमरा D आकार करबा बड़ D हैला ED U हैला यूनिटी ऑफ D if and only D of U equal to D of 1 if and only पे अछि पिले आरंभ कली प्रमाण मने कर U is unity of D means there exists V belongs to D such that U into V equal to 1 ठीक अछि आरंभ करूची मते D होची ED now D of U into V
d of u into v, I may write is greater than or equal to d of u. But uv is 1 means d of 1 is greater than or equal to d of u. ठीक ଅଛି again u को लिखि परिबी u into 1. Now d of u into 1 is greater than or equal to by ed condition d of 1 I may write. But d of u into 1 is u, so d of u is greater than equal to d of 1. Equation 1, equation 2 on a combining d of u equal to d of 1. So u is unity ame d ranele प्रमाण कले d of u equal to d of 1. Let us come to the converse part. मने कर d of u equal to d of 1. I want to show u is unity of d. I want to show u is unity of d. Now, by the division algorithm, I may write 1 equal to u into q plus r. 1 ମୁଁ ହରିଲି u ରେ ମୋର ହରୁଛି ଭାଗଫଳ ମୋର q କହିଲି ଭାଗଶେଷ r ଦେଲି. What is r? Either r is 0 because we are given that we are ed. Either r is 0 or del of r is less than del of u. Del of r is less than del of u. अच्छा del of u, we are del of u equal to kete del of 1. That means del of r is आमे बता r is discussion करूचे. Del of r is less than sorry del of r आमे करे d आगे कथा बता पिला जेतो d discussion करूचे d of r is less than d of 1. d of r is less than kete d of 1. अच्छा again पिले second कथा हला पिले कोन d of r आमे कते पहले less than kete d of 1. But d of r is d of r into 1. By ed condition, it will be greater than equal to d of 1. Means d of r is greater than equal to d of 1. तो तुम्हें कौन पाइछो d of r is less than d of 1. आमे इठी कौन पाइले d of r greater than d of 1, which become a contradiction. तो आमे d of r less than d of u नहीं परिबा नाही. ऑप्शन पिले दीटा थिला दीटा ऑप्शन ए ऑप्शन ता कटि गला तो r केता हो पिले को 0. जदी r हैला 0 त तुमे कोन पाइलो ना मे ए पाइले 1 equal to u into q पाइले. 1 equal to u into q माने पकले डेफिनेशन ऑफ यूनिटी कोन यूनिट डेफिनेशन कोन u is unity of a माने कर d माने इंटीग्रल डोमेन if there exists another element v in d such that u into v samane v into u equal to 1. u into q is 1 means u is unity of d. हे गला पिले तुम बुझी पाइला कोन कोन कथा हला आउ थरे हम डिस्कशन करूची कन्वर्स पार्ट को आउ थे देखो मु नेली d of u equal to d of 1. I want to show u is unity of d. By division algorithm, I write 1 equal to u into q plus r. So what is r? Two options are there. Either r is 0 or d of r is less than d of u. Confuse होबनी d del जगह मु d लिखिछि. d of r less than d of u. But d of u is equal to d of 1. So d of r is less than d of u. But I say but d of r is equal to d of r into 1. According to ed condition, d of r into 1 is greater than equal to d of 1. Means d of r is greater than equal to d of 1. So what you see from this result, we have d of r less than d of 1. From this result, d of r greater than d of 1. What happened? These two statements are contradicting to each other. So this type of assumption is completely wrong. So this case is wrong. What the remaining? R equal to 0. If r is equal to 0, what the statement become? 1 equal to uq. uq means product of two numbers is 1 means u is a unity कहि पर q भी unity कहि पर जब प्रश्न अछि u is a unity, I can say that u is a unity of d. बुझिए ना.